آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دی ٹائپس آف کانٹریکٹ انٹو صحیح باطل اینڈ ویلڈ irregular اینڈ invalid کانٹریکٹ. تو اس ٹاپک کو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ صحیح عقد، فاسد عقد اور باطل عقد، یہ تین ٹائپس ہوتی ہیں کانٹریکٹس کی. تو آج ہم دیکھیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا کانٹریکٹ صحیح ہے اور کون سا کانٹریکٹ فاسد ہے اور کون سا کانٹریکٹ باطل ہے، اس کے پرنسپلز کیا ہیں اور اس کے اصول کیا ہیں. جو صحیح عقد ہے اسے کہتے ہیں ویلڈ، فاسد کو کہتے ہیں irregular اور باطل عقد کو کہتے ہیں invalid کانٹریکٹ. اچھا، اس سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جو بھی عقد ہوتا ہے یا کانٹریکٹ ہوتا ہے، میں اگر کہوں کہ بھی ہم کانٹریکٹ کی بات کریں، کانٹریکٹ اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں اصل اور دوسرے انگریڈینٹ کو کہتے ہیں وصف. اصل اور وصف، یہ ہر عقد کے یہ دو اس کے اندر انگریڈینٹس ہوتے ہیں. ایک عقد کے اندر اصل ہوتا ہے اور ایک اس کا وصف ہوتا ہے. اچھا، اب اگر کوئی ایسا کانٹریکٹ جس کی اصل تو ٹھیک ہو، اس میں پرابلم نہ ہو، یعنی اصل ٹھیک ہے، اصل جو ہے وہ ٹھیک ہے اور وصف بھی ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کانٹریکٹ ویلڈ کانٹریکٹ ہوگا اور وہ کانٹریکٹ صحیح عقد کہلائے گا. اس کی اصل بھی ٹھیک ہے، اس کے وصف بھی ٹھیک ہے. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کانٹریکٹ کی اصل ٹھیک ہوتی ہے لیکن اس کے وصف میں کہیں نہ کہیں پرابلم ہوتا ہے، کوئی رولز کی وائلیشن ہوتی ہے، تو پھر وہ کانٹریکٹ کہلاتا ہے فاسد عقد، irregular کانٹریکٹ کہتے ہیں ہم اس کو. عقد فاسد بھی کہہ سکتے ہیں، فاسد عقد بھی کہہ سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کانٹریکٹ کی اصل میں بھی کوئی رولز کی وائلیشن ہوتی ہے اور اصل ٹھیک نہیں ہوتا، اور اس کے وصف کے اندر بھی رولز کی وائلیشن ہوتی ہے، وصف بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو جہاں پر یہ سچویشن آ جائے تو ہم وہاں پر کہتے ہیں کہ یہ باطل عقد ہے یا عقد باطل کہلاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ہم انویلڈ کانٹریکٹ. اچھا، بعض اوقات یہ سچویشن بھی ہوتی ہے کہ اصل میں پرابلم ہوتا ہے، شریعہ رولز کی وائلیشن ہوتی ہے لیکن اس کے وصف ٹھیک ہوتا ہے، اس صورت میں بھی وہ کانٹریکٹ باطل کانٹریکٹ کہلائے گا یا انویلڈ کانٹریکٹ کہلائے گا. سو دیر آر تھری ٹائپس آف کانٹریکٹ: ویلڈ کانٹریکٹ، irregular contract and باطل contract. But you must know کہ یہ جو تینوں کی تینوں کنڈیشنز جو کانٹریکٹس ہیں ٹائپس کی، these are as per Hanafi's jurists. حنفی جورسٹ کے نزدیک یہ کانٹریکٹ کی تین قسمیں بنتی ہیں: صحیح، فاسد اور باطل. جہاں تک میجارٹی جورسٹ کا تعلق ہے، جن میں ہم مالکی، شافعی اور حنبلی فقہا کی بات کرتے ہیں، تو ان کے نزدیک فاسد کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں دیر آر اونلی ٹو ٹائپس، اور وہ صرف صحیح عقد اور باطل عقد کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صرف عقد کی یہ دو قسمیں ہیں، صحیح عقد اور باطل عقد، اور وہ فاسد عقد کی بات ہی نہیں کرتے. یعنی جو کانٹریکٹ حنفی جورسٹ کے نزدیک فاسد ہوتا ہے وہ کانٹریکٹ
मालकी और शाफी और हम्बली इन सब के नज़दीक वो बातिल होता है, बट हनफी फासिद और बातिल में ये डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करते हैं, लेकिन बाकी जूरिस्ट जो है वो क्रिएट नहीं करते और वो फासिद को भी बातिल कंसीडर करते हैं। तो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ वी मूव फॉरवर्ड कि ये असल और वसफ हमें कब पता चलेगा कि क्या चीज कॉन्ट्रैक्ट की असल है और क्या चीज कॉन्ट्रैक्ट की वसफ है। हम जरा इस तरफ देखते हैं। अच्छा, अब जो असल है अक्द की जो कंसीडर होती है कि हम कहते हैं कि ये अक्द की असल है, इसमें के ये जो अक्द की असल कहलाता है, अक्द की असल के अंदर हनफी और शाफी और इन सब का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अब इसमें हम इसको देखेंगे असल एज पर हनफी जूरिस्ट्स। हनफीज के नजदीक असल क्या है? हनफी कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑफर एंड acceptance will be considered only asal of the contract. If there is any violation in the offer and acceptance, then the contract will be considered invalid. अच्छा, अब उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है? मिसाल के तौर पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के अंदर प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? टेंस, आपको याद होगा जब हमने ईजाब व कबूल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ा था तो हमने कहा था कि ज्यूरिस्ट अनफी ज्यूरिस्ट कहते हैं कि दोनों के दोनों पास्ट के सेंटेंस होने चाहिए या एक पास्ट का और दूसरा प्रेजेंट का टेंस होना चाहिए। अगर किसी ने फ्यूचर टेंस यूज किया तो इसका मतलब है वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ठीक नहीं होगा। अगर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस फ्यूचर टेंस में हुई है तो वो अक्द बातिल हो जाएगा। तो ये इसी तरह अगर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के अंदर किसी से लेने में कंसेंट मिसिंग है, consent of one party is missing, दूसरे फ्री की कंसेंट ही नहीं ली गई इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम है। यानी आपने एक तरफ से सिर्फ ऑफर है या ऑफर एग्जिस्ट नहीं कर रही, एक्सेप्टेंस एग्जिस्ट नहीं कर रही। सेम एज जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ली गई उसके अंदर फ्रॉड था, यानी फ्रॉड के जरिए ली गई है या चीट करने के जरिए ली गई है या डिसेप्शन के जरिए एक्सेप्टेंस ली गई है। सेम एज कोअर्जन, कोअर्जन के जरिए एक्सेप्टेंस ली गई है, यानी किसी को मुकरा बनाया गया, जबरदस्ती किसी के साथ की गई और कहा कि ये तुम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कबूल करो। तो इन सारी सिचुएशंस के अंदर हनफी जूरिस्ट कहते हैं कि भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के अंदर प्रॉब्लम है। जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के अंदर प्रॉब्लम होगा तो इसका मतलब है असल के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। जब असल में प्रॉब्लम होगा तो इससे ये शुमार किया जाएगा कि जनाब आपका कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं है, क्योंकि असल में प्रॉब्लम है। और असल में प्रॉब्लम कहाँ से आएगा? वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में आएगा। और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम कहाँ से आएगा? वो इन सिचुएशंस की वजह से आएगा। तो कहते हैं कि भाई इसका मतलब हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट की असल में प्रॉब्लम है। तो हनफी ज्यूरिस्ट के नजदीक कॉन्ट्रैक्ट की असल में ऑफर एक्सेप्टेंस ही है ओनली, और जितने भी इश्यूज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के अंदर आएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट की असल को अफेक्ट करेंगे। सो दीज आर द प्रिंसिपल रिगार्डिंग द असल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज पर हनफी ज्यूरिस्ट। अच्छा, इसी तरह अगर हम जमहूर को देखें जिनमें मालकी, शाफी और हम्बली आते हैं,
अगर इनको हम देखें तो भाई इनके नजदीक असल क्या बनती है, तो ये कहते हैं कि असल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नंबर 1 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फिर उसके बाद पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट मैटर। वो कहते हैं कि ये है असल कॉन्ट्रैक्ट की। अब इन तीन में प्रॉब्लम आएगी तो हम ये समझेंगे ये असल में प्रॉब्लम है। मालकी, शाफी और हम्बली के नजदीक पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, मिसाल के तौर पर वो एलिजिबल नहीं है, दोनों के दोनों पागल हैं, दो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले, या दोनों में से कोई एक पागल है, तो इसका मतलब है कि भी उनकी कैपेसिटी ही नहीं है, जो कि हम अहलियत या कैपेसिटी के अंदर जो डिस्कशन कर रहा है। सेम है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर है वो चीज जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उसके अंदर इश्यूज हैं, उसके अंदर अनसर्टेनिटी है, गरर है, वो चीज आप स्पेसिफिकेशन उसकी आपने बताई हुई नहीं है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वो चीज इस सिरे से हराम हो, प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट हो, जिस तरह शराब है, मुर्दार जानवर है, उन चीजों को ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो इसमें इन तीनों में से अगर किसी एक में भी प्रॉब्लम आया तो शाफी मालिकी कहते हैं कि ये असल के अंदर प्रॉब्लम है, ये वसफ नहीं कहलाएगा बल्कि ये असल ही कहलाएगा एज पर हनफी ज्यूरिस्ट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हनफीज एंड हनफीज एंड अदर ज्यूरिस्ट्स के इनके असल के बारे में हम यही कहते हैं कि भाई हनफीज के नज़दीक ये असल है और मालिकी, शाफी और हम्बलीज के नज़दीक ये असल कहलाएगा।